Om Namah Shivaya. Welcome to the program of Shiv Sutra learnings from Shiv Sutra, Vigyan Bhairavi meditation and the Spandan Karika. So this is a beautiful program of 12 days starting from the 26th of Feb to the 8th March, and हम morning 5:30 a.m. to 6:30 a.m. So let us all come together on this Mahashivratri, learning from all the 12 days, growing each and every day, where we are connecting deeply to our real self. So the flow of program is going to be like this कि every day हम 30 minutes learnings लेंगे शिव सूत्रा या स्पंदन कारिकास, and we will learn every day a new technique of meditation or Vigyan Bhairava meditation. Okay. So हम 30 minutes will be the learnings, and from after the learnings we will be chanting Om Namah Shivaya for 108 time, learning the techniques and will be applying in that. Okay. So Shiv Sutra has 77 verses and it talks about the real nature of Lord Shiva. और हम वो learnings में अपने आप को अंदर बहुत गहराई में हम कनेक्ट करने जा रहे हैं. तो स्पंदन कारिका टॉक्स अबाउट एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग, चाहे वो एक्सटर्नल है चाहे वो इंटरनल है, एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग. एंड दिस एवरी वाइब्रेशन हैज दिस लॉर्ड शिवा एंड माँ शक्ति की एनर्जी. So we will understand what does the Spandan Karika says, and then we will explore in our being and in the meditation. So Vigyan Bhairavi meditation, Rava means sound and Bhairava means beyond sound. So Tadra is the techniques, 112 techniques via which we can connect to the real truth, connect to that Bhairava. What is that Bhairava? Beyond sound, that real self, that real truth. So, purpose of doing this is to gain the knowledge, the Vijnana, the real knowledge, which is beyond the sound, the silence, as I taught you even in the Om classes. मगर हम इसमें अलग तरीके से हम और गहराई में समझने की कोशिश करेंगे. So, माँ पार्वती आस्क लॉर्ड एंड शिव जी को पूछती हैं इन दी विज्ञान वैद्य की कि मुझे बताओ कि आपका सच्चा स्वरूप क्या है. इज इट लाइक मैनिफेस्टेड एट साउंड और इज इट बियॉन्ड दिस? तो क्या ये चेंजिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग वाला है या ये अनचेंजिंग एंड ट्रांसेंडल है करके. तो लॉर्ड शिवा बोलते हैं कि I will teach you 112 techniques via which you can understand my real तत्व, my real self. आप वो beyond sound आप उसमें connect करो. So he shares 112 techniques, and via that we can experiment and we can actually explore that reality of that real self. So now the most beautiful about this entire text that I'm talking about is the transmission of energy. मगर ये transmission of energy हो कैसे रही है? एक बिल्कुल एक लव टेक्स्ट में, एक पूरे समर्पण, पूरे सरेंडर, एक फुल लव टेक्स्ट है. जो अगर आप खाली इंटेलेक्चुअली समझने की कोशिश करोगे तो योर एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी इनकम्प्लीट. बट जब आप उसको पूरी तरह सरेंडर करते हुए बिल्कुल एक प्योर प्योर भक्ता की तरह करोगे तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस होगा. तो ये 112 टेक्निक्स जो है इसमें से 9 आर द टेक्निक्स फॉर द ब्रेथ वर्क, 11 is the techniques for chanting, 22 the methods are via the root from desire, 12 via focus, 3 via ease, 4 via eyesight, so sight, 10 by light, 5 by stillness, 12 by omnipresence, 11 by logic, 7 by consciousness, 3 by void, and rest is keeping your awareness on the dark night and merging into that dark. तो हम खाली 12 टेक्निक्स ही हम एक्सप्लोर कर रहे हैं. बाकी बाद में हमें वापस से क्लास लाऊंगी जहाँ पे हम सारे टेक्निक्स हम धीरे धीरे करके सीखेंगे. सो नाउ लेट अस लर्न कि हम हाउ कैन वी कनेक्ट, हम वो कैसे वो 12 डेज में हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, मंदिर जाते हैं, हम बाकी चीजें करते हैं,
मगर हम रिचुअल करते हैं, मगर हम हमें और डीपर कनेक्ट करना है, हमें बहुत अंदर गहराई से अपने रियल ट्रूथ को जानना है। तो हाउ कैन यू कनेक्टेड इज वाया दिस डीप डीप साधना एंड योर प्रैक्टिस। तो लेट योर प्रैक्टिस स्टार्ट विद दैट एंटायर डेडिकेशन, एंड वो डेडिकेशन से वो डिसॉल्व हो जाए, वो डिसॉल्व होते हुए वो एंटायर वास्टनेस में, अबंडेंस में वो समा जाए। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू इज, आप जब ये 12 डेज का मेरे साथ आप ये शिवरात्रि की लर्निंग्स आप कर रहे हो, तो प्लीज डू इट विथ फुल डेडिकेशन, विथ फुल डिवोशन, विथ फुल भक्ति, विथ फुल सरेंडरनेस। और let us make this Shivratri the most transformative in your own life. Let you just tap in your inner energy. आपका अंदर की जो यज्ञ है ना, आपका अंदर से जो तप है, वो तप शुड बी लाइक एन इंटरनल यज्ञ आप कर रहे हो टू लॉर्ड शिवा। आप पूरी तरह से सरेंडर, एक छोटे बच्चे के जैसे, एक नंदी की तरह, एक नंदी जैसे अपने भगवान शिव जी के लिए पूरी तरह पूरी भक्ति के साथ सरेंडर कर रहे, वैसे हम जब करेंगे तो हमारे अंदर एक अलग एनर्जी, एक अलग चेंज, एक अलग ही आपके अंदर एक वाइब्रेशन चेंज होगा। तो कई बार हम सोचते हैं हम अपने जीवन को मैनेज कर रहे हैं, मगर ट्रस्ट मी हम कुछ नहीं कर रहे। हम ऑटो गियर में जिए जा रहे हैं, ये श्वास भी उनकी देन है, ये अन्न भी उनका देन है, हम जो अर्थ में खड़े ये भी उन्हीं का देन है। तो शो दैट प्योर लव, दैट प्योर भक्ति, दैट प्योर पैशन, वो प्योर डेडिकेशन एंड डिवोशन एंड परसिवरेंस। मेरे तरफ से आपको 100% डेडिकेशन डिवोशन टू असिस्ट यू इन दिस मैनर फुल टाइम रहेगा। मगर आप भी प्लीज शो दैट अपनी तरफ से आप वो लेके आओ, ताकि आप सरेंडर होते हुए अपने भगवान शिव जी का हाथ पकड़ते हुए, और एंड यू विल एक्सपीरियंस, आप ही एक्सपीरियंस करोगे ये 12 दिन के अंदर, दैट आपने खाली एक कदम आगे बढ़ाया है, मगर उन्होंने आपके सामने 1000 कदम बढ़ाए। मतलब आपने तो थोड़ा सा इतना सा योगदान दिया है, मगर उनका योगदान या उनकी ब्लेसिंग बिल्कुल अपरंपार है। मतलब इट इज बियॉन्ड वर्ड्स, शब्द भी वो बयान करने के लिए कम है। तो आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट एंड आई, दैट इज व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज सरेंडर एंड डू दिस प्रैक्टिस नाउ। सबसे पहले ऑन द डे वन हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ भगवान शिव जी, हम अपने हाथों से पूरी तरह से हम ड्रॉ करेंगे। तो मैं आपको एक ड्रॉ आपको जेरोक्स दे रही हूँ, जो आप उसको ट्रेसिंग पेपर पे ले सकते हो और आप ड्रॉ कर सकते हो अपने बुक में। A3 के पेपर में आपको ड्रॉ कर लेना है। और हम डे 1 में हम स्पंदन कारिका की लर्निंग्स लेते हुए, वो स्पंदन, वो वाइब्रेशन लेते हुए, और मैं आपको एक ब्रेथ वर्क सिखाऊंगी, वो ब्रेथ वर्क से पूरी तरह एंग्रॉस्ड होते हुए हम उसमें रंग भरेंगे, उसमें ब्यूटीफुल जो कलर्स है, वो कलर्स भी आपसे बात करेंगी, इतना डेप्थ में आप महसूस करोगे। तो कहने का मतलब है हर चीज हमारे इर्द गिर्द में वाइब्रेशन में हो रहा है। ये हर वाइब्रेशन में शिव हमारी कॉन्शियसनेस और शक्ति की एनर्जी है। जब आप वो महसूस करोगे, आप ड्रॉ करोगे, जब आप ड्रॉ भी कर रहे हो तो आपकी पूरी जो आपकी कॉन्शियसनेस एनर्जी है, वो आपके हाथ से निकलते हुए, वो पेपर पे निकलते हुए आप वो ड्रॉ कर रहे हो। तो वो ग्रेस, वो अबंडेंस, एंड यू विल सी दैट प्यार खाली बरस नहीं रहा है आपकी पूरे जीवन में, हर एक चीज में अपरंपार। यू आर ड्रेंच्ड इन दिस लव, यू आर फ्लोटिंग इन दिस डिवाइन ग्रेस। मतलब वो मधुशाला में मधुशाला पी आई, मतलब लिटरली यू विल बी इन दिस डिवाइन ग्रेस डिवोशन, यू विल बी literally experiencing that bliss. So चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, I am that form of consciousness, शिवोहम शिवोहम, I am that शिवोहम। तो my
प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट कि आपको पूरी तरह से एक भक्ता की तरह आपको ये वाले करने हैं, और जब आप करोगे आप खुद एक्सपीरियंस करोगे कि आपके हर एक चीज में आपको एक अलग ही वाइब्रेशन फील हो। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू द स्लाइड वेयर मैं आपको बताऊं कि हम क्या ड्रॉ करने वाले हैं डे वन। ओके, सो उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सांसों की माला में सिमरों में शिव का नाम, मतलब वो सांसों की माला में सिमरों में शिव का नाम, वो भक्ति, वो डेडिकेशन, वो डिवोशन से हम उससे वो लर्न करने वाले। अगर आप नॉलेज खाली इंटेलेक्चुअली लोगे वो खाली आपकी नॉलेज रहेगी और वो आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे। तो ये पूरी 12 days आई वॉन्ट टू गिव यू एन एक्सपीरियंस, दैट फील दैट वाइब्रेशन, वो स्पंदन जो है वो आपको महसूस करना है डीप इनसाइड, और वो पूरी तरह वो शिव के आराधना में, शिव की ग्रेस में पूरी तरह भरते हुए अपने अंदर हमारे ये पिंड के अंदर आपको वो महसूस करना। सो आई वॉन्ट टू शो यू द स्लाइड दैट ऑन द डे वन व्हाट वी विल बी ड्रॉइंग, सो दैट you all are ready with the thing. Okay, so I'm sharing the slide right now. तो हम सबसे पहले दिन हम करेंगे ड्राइंग ऑफ भगवान शिव जी। तो मैं आपको एक ये देने वाली हूँ पेंसिल स्केच। तो पेंसिल स्केच मैं आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि जो फ्री हैंड में नहीं कर सकता है तो वो आउटलाइन आप ट्रेसिंग पेपर पे रख के आप ड्रॉ करके रख सकते हो। तो ऑन द डे वन आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू एटलीस्ट ड्रॉ द आउटलाइन, फिर उसको रंग कैसे भरने, ब्रेथ वर्क कौन सा करना है, और कैसे वो स्पंदन से हम वो वाइब्रेशन फील करते हुए करेंगे, दैट इज व्हाट वी विल टेक इट फर्दर। ओके, सो day one, keep your pencil sketch ready so that we are able to put the beautiful colors and experience that bliss in our being, in our entire, each and every cell of your being, in your existence, and so on. So, Hari Om Namah Shivaya, and I wish all of you to be blessed in abundance by each and every God.